नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, कुछ तो अपने ही हैं, कुछ नए हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो आर्ट चैट बॉक्स में बनाएं, और जो लोग पहली बार वेबिनार देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो थम्स अप करें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों से बातचीत कर सकूं। क्योंकि वेबिनार में आप और हम दोनों चैट बॉक्स के थ्रू ही बात करेंगे, और लास्ट में जब क्वेश्चन सेशन चलेगा उसमें आप लोग डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। यस, जो जानते हैं, जो दोबारा कई वेबिनार सुन चुके हैं, वो हार्ड चैट बॉक्स में बनाएं, और जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो थम्स अप से यस। प्रवीण जी, कहाँ से हैं प्रवीण जी? यस, सिद्धार्थ निगम जी। सिद्धार्थ निगम जी कहाँ से हैं? राइट इन द चैट बॉक्स फ्रॉम वेयर यू आर। अखिलेश जी, गुड इवनिंग सर। सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ, ओके ओके सिद्धार्थ बाबू। सर आई एम फ्रॉम ग्वालियर सर। ओके, ये पीयूष पांडे जी, वाराणसी। ओके, यू आर कमिंग ऑन द फर्स्ट टाइम। विनीत जी फ्रॉम मुंबई। ओके ओके, पीयूष पांडे, यस ओके, योर फर्स्ट टाइम। ओके, हाँ यस। जस्ट आई हैव ए इंग्लिश चाहेंगे, हिंदी चाहेंगे कि बोथ चाहेंगे? आवाज गुजरी। जो प्रवीण चौहान है वो ऑडियो से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इनका आवाज नहीं जा रही। क्यों प्रवीण जी, ऑडियो नहीं जा रही क्या? वो हिंदी, पवन जी कह रहे हैं हिंदी। ओके, अपन मिक्स बात करेंगे, इंग्लिश। विनीत जी कह रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, दोनों पैथी चलाएंगे भाई। अच्छा, प्रभा to everyone, Dehli. Okay, welcome to all in this webinar. Basically, on Wednesday, I have taken one webinar of this session, that is no stress, and this is the second part of that, that is beat your stress by yourself. Before starting the webinar, when you have given your introduction, I want to give you a brief introduction of myself. Bear with me for 3 seconds in my introduction. आप लोग बिल्कुल ध्यान। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार राम कुमार जी, वेलकम। Dr. S.P. Sahni, the director of Om Sai ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments and surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1996, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahni was honored with the prestigious WHO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips on life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely.
People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Think high, avoid negative thinking by your knowledge. Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Yes, dear friends. हाँ दोस्तों, एक बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेस पे ही सारा सेशन चल रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्ट्रेस जो है मेन कहाँ पर डेवलप होती है, अपने विच पार्ट ऑफ द बॉडी इट डेवलप्स। क्या वो हार्ट में होती है, क्या वो लंग्स में होती है, क्या वो बॉडी में होती है, या कि विच पार्ट स्कल में होती है, विच पार्ट ऑफ द राइट इन द चैट बॉक्स। स्ट्रेस कहां डेवलप होती है दोस्तों? प्रवीण चौहान जी बताएं, चैट बॉक्स में लिखें विच पार्ट ऑफ द बॉडी। माइंड में होती है सर। कहाँ होती है? माइंड में, दिमाग से। दिमाग से, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Any other? Start from the thought. Very good, Piyush ji. Yes, thoughts. Okay. Thought एक ब्रॉड टर्म आपने बताई है। बेसिकली क्या है कि स्ट्रेस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स समझना पड़ेगा। एज ए डॉक्टर, बेसिकली आई एम ए ENT सर्जन एंड आई एम रनिंग ए ENT हॉस्पिटल इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश, इंडिया। एंड माई वाइफ इज ऑल्सो ENT सर्जन। ही इज administrator. He is administrating all the hospital and he is the director of my hospital, and basically, and my son is also a surgeon in the UK. Just I have traveled through 20 countries and I just coming back from the UK, and I have a lot of experience with so many people. ये देखने में आया है कि ज्यादातर लोग जो है आपको जैसे ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स, एक तो क्या ब्रेन मैटर है, बॉडी मैटर है। होता क्या है कि ब्रेन वो चीज है जो हम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में उसको डिसेक्शन किया करते थे। एक समझ लीजिए कि मांस का टुकड़ा है, और जैसे अपनी ये बॉडी है, जैसे अपने ये हैंड्स हैं, जैसे ये अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही पूरा मैटर ही है। जो मतलब बॉडी का कहने का मतलब ये कि अपना जैसे मोबाइल है, जैसे टीवी है, ऐसे ही है, पर इसके अंदर एक सोल यानी कि एक करंट चल रहा है जिसकी वजह से बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स चलता है। अब माइंड क्या चीज है? ब्रेन माइंड नहीं है, ब्रेन और माइंड दोनों अलग चीज है। मैं समझाने के तरीके से समझाता हूं कि ब्रेन तो एक मैटर है, बॉडी एक मैटर है, माइंड समझ लो कि अपने बॉडी के अंदर एक कैमरा फिट है जो अपनी थॉट को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैच करता है। जैसे वो कैच करता है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वाइब्रेशंस जो है ब्रेन जो कि मैटर है उसमें डालता है। वो ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग EEG करते हैं, हम लोगों के EEG मशीन होती है, जैसे ECG होती है, तो उसमें क्या ब्रेन वेव्स आती है। ECG में जैसे वेव्स आती है, ऐसे EEG में ब्रेन आती है। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो अपन ने कुछ अच्छी बात सोची, तो उसमें जो है पॉजिटिव इंथुजिस्टिक सर्किट बन जाता है, और वो फिर हार्ट में जाके एम्पलीफाई हो जाता है, और आपकी बॉडी वैसे उत्साहित चलने लग जाती है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आपका मन खुश हो जाता है, एक्साइटिंग सॉन्ग सुनते हो, आप डांस करने लग जाते हो। कई बार आपने देखा होगा पिक्चर में गाना चल रहा है तो आपके पैर भी चलने लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन।
उसी के ऊपर देखिए ये एप्पल वॉच बनी हुई है, कुछ नहीं करते वो लोग, ये भी सिंक्रोनाइजेशन पे है। मेरे पास जैसे एप्पल का ये है, एप्पल का ये है, एप्पल का मोबाइल है, तो हमारे सारे मोबाइल सिंक्रोनाइज है। आप देखिए कि जब गाना बज रहा होता है तो आपके पैर अपने आप जो है उठने लग जाते हैं, कोई अच्छा गाना हो तो आप खो जाते हो, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो जैसे आपके अंदर कोई विचार आता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन के आपकी बॉडी को वैसे ही सिंक्रोनाइज कर लेता है। नेगेटिव थॉट आपको निरुत्साहित कर देता है और पॉजिटिव थॉट आपको जो है उत्साहित कर देता है। दूसरे तरीके से, सरल तरीके से समझाता हूं, जो माइंड है इसके भी दो पार्ट्स, एक है कॉशियस माइंड जिससे आप और हम बात कर रहे हैं, एक है सब कॉशियस माइंड जिससे अंदर से मेरे बातें निकल के आ रही है, जो स्टोरेज है। जो सब कॉशियस माइंड है उसकी पावर जो है 95% होती है और कॉशियस माइंड की जो पावर होती है वो 5% होती है। और 92% लोग कॉशियस माइंड से जीते हैं और अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। 8% लोग जो होते हैं वो 95% ताकत को यूज करते हैं, उनको आ जाता है और जो है वो आगे राइज करते हैं और सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। आप उन 8 में आने की संभावना रखते हो क्योंकि आपने ये वेबिनार ज्वाइन करने के लिए इच्छा जताई, वो आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपके ऊपर ब्लेस्ड है। तो इस चीज को मैं सरल तरीके से समझा देता हूँ। अपने ये जो माइक है थोड़े इनको बंद रखिएगा। मैं एक कॉशियस माइंड और सबकॉशियस माइंड को एक छोटी सी जो कहानी आप सुनते हैं अलादीन का चिराग, उससे समझाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अलादीन का चिराग के बारे में सबने सुना है? हेलो, अलादीन के चिराग के बारे में सबने सुना है? अगर सुना है तो लिखो यस, राइट, यस, राइट, ओनली यस, वाई लिख दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। आई विल अंडरस्टैंड these things I am doing just to motivate myself कि you are with me. Okay, thank you विनीत जी, थैंक यू प्रभात जी। आप देखिए वो एक दिया होता है, दिए को जब घिसते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें से जिन निकलता है, जिन को जैसे ही हम बोलते हैं तो जिन अपनी इच्छाएं पूरी कर देता है। ऐसे क्या है कि कॉशियस माइंड क्या है, दिया है, जब उसको बार बार अपन एक ही बात को रिपीट करते हैं तो सब कॉशियस, जैसे अपन ने सोचा कि मेरे को जो है मेरे साथ मैं बीमार हूं, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे को कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, मेरे को कहीं मेटास्टेसिस तो नहीं हो गया, तो आप देखिए कि बार बार अगर वो चीज बोलोगे तो सबकॉशियस माइंड का जिन निकल आता है और वो जिन निकल जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो जिन जो है बीमार कर देता है, क्योंकि उसका काम ही यही है, वो तो कोई क्वेश्चन आंसर्स करता ही नहीं है। एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कल्प वृक्ष पेड़ के बारे में सुना होगा, सुना है तो लिख दो यस। विमल सिन्हा जी सुना है कल्प वृक्ष? जो इच्छा पूरी करता है पेड़? नहीं सर। यस, वाई? ऐसा है कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है, कल्प वृक्ष पेड़ होता है जो आपकी इच्छा पूरी करता है। एक बार क्या हुआ कि एक फार्मर, एक किसान आटा मारा एक पेड़ के नीचे बैठता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है, जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है तो उसको लगता है कि यार भूख लग रही है, कुछ खाने की मदद हो जाती तो अच्छा रहता। इतने में खाना फर्स्ट क्लास राष्ट्रीय खाना आ जाता है। वो खाना खाता है तो उसको नींद आने लग जाती है। वो सोचता है कि यार मजा आ जाए, पलंग मिल जाए तो बढ़िया से मैं सो जाऊं। देखता है क्या, पलंग आ जाता है, सो जाता है। धीरे से क्या देखता है वो, उसको लगता है कि अब कोई टांगे वांगे दबाने के लिए आ जाए तो मेरे को थोड़ी अच्छी सी आ जाए भाई। इतने में टांगे दबाने वाले आ जाते हैं। फिर उसको नींद आ जाती है तो देखता है कि क्या है इस पेड़ के ऊपर, कोई भूत भूत तो नहीं है भाई, कोई भूत तो नहीं है। जैसे ही वो भूत बोलता है तो भूत आ जाते हैं। वो डरने लग जाता है। वो सोचता है कहीं ये भूत मेरे को खा तो नहीं जाएंगे। इतने में भूत उसको खा लेते हैं और वो मर जाते हैं। बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि सारी दुनिया विचारधारा की है। ये कल्प वृक्ष पेड़ कोई भार नहीं होता,
ये आपका माइंड ही है। जैसा आप सोचते हो वैसी दुनिया ही आपको नजर आती है। ये है ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स। आज जो का वेबिनार शुरू करने के पहले आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है, माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है और सब कॉन्शियस माइंड क्या है। अगर इसको आपको अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो 2 लाइनें और मैं आगे बताऊंगा। इफ इट इज क्लियर राइट सी। डॉक्टर प्रमोद जी, यस सी क्लियर, वेरी गुड। विनीत जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू। अब बात आती है कि इसको अपने को मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं। ध्यान से सुनना, यहां रहता है पीनियल, उसके पीछे रहता है प्यूटिटरी, यहां रहता है थायराइड, थायराइड 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 के जस्ट ऊपर रहता है पैराथायराइड, यहां रहता है एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन, और यहां रहता है पैंक्रियास जो इंसुलिन बनाता है, और नीचे रहते हैं गोनेट्स। जेंट्स में टेस्टिस कहलाती हैं और लेडीज में ओवरीज कहलाती है। ये 7 एंडोक्राइन जो है म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा कहलाता है बॉडी का। जिस आदमी ने इसको मेंटेन कर लिया उसने समझ लो जग जीत लिया और वो सक्सेसफुल हो गया। उसने जग जीत लिया और सक्सेसफुल हो गया। उसको कैसे मेंटेन करना है, क्या टेक्निक है, कैसे अपन स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उसी पे ही अपना आज वेबिनार होता है। क्या होता है, हर जैसे एफएम में जो फ्रीक्वेंसीज रहती हैं ऐसी अपनी भी फ्रीक्वेंसीज रहती है। आप लोग जो भी कहीं से कोई भाग के आया है, कोई तेजी से आया है, कोई हड़बड़ी में है, कोई आधे डिस्ट्रैक्टेड है, किसी के माइंड में कुछ चल रहा है, किसी के माइंड में कुछ चल रहा है, उस सब को लेवल करने के लिए अपने वेबिनार को ओरिजिनल शुरू करने के पहले इस म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा को कैसे मेंटेन करना है, वो हाउ वी आर गोइंग टू बीट आवर स्ट्रेस बाय आवर सेल्फ। वी हैव ए प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड of 3 minutes. Just bear with me, be comfortable, allow, आंखें बंद कर लें, शांति से बैठ जाएं, प्रेयर को अपने दिमाग के हर कोने में जाने दें। उसके बाद अपन वेबिनार को शुरू करेंगे, जिससे कि आप कॉन्शियस माइंड से नहीं सब कॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी से इस वेबिनार को सुन सकें और आपकी हर वर्ड आपके सब कॉन्शियस में जाए, वो आपको याद रहे। Okay, just start the prayer. Be comfortable, close your eyes. Let us have a change of frequency. Tera mangal, tera mangal, tera mangal hoye re, sabka mangal, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। काला पोता और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन
आँखें सूते अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के करतिल में कर में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। Relax, open your eyes. If you are relaxed, write R. If you are relaxed, write R in the chat box. Dear friends, Vimal ji, सिद्धार्थ जी, रिलैक्स, थैंक यू। बेसिकली क्या किया है मैंने, क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं। एक सिंपैथेटिक, जिससे क्या है कि जो एक्टिव सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, पीनियल और पिट्यूटरी दोनों सुबह स्टेरॉइड रिलीज करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, वो हम लोग चलने फिरने लायक हो जाते हैं, फटाफट ब्रश करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं। अगर हम उसी मूड में चलते रहेंगे तो गाली गलौज, लड़ना झगड़ना, इरिटेशन उसी में चलेंगे। पर उस टाइम अगर थोड़ा सा बैठकर हम इसको समझ सके, 5 मिनट अपने साथ बैठे, अपने आप को समझा कि भगवान तेरी बड़ी मेहर है कि मैं आज सुबह उठ गया, तेरा धन्यवाद है। कई लोग तो नहीं उठे होंगे। जब हम लोगों को धन्यवाद देते हैं तो हमारी बॉडी में एक सेरोटोनिन नाम का, डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो अपनी बॉडी को खुश रखता है। फिर जब अपने आप काम पे जाओगे, तो आपको गाली भी बकेगा तो आप कहोगे ठीक है यार, मेरा तो गोल बड़ा है, मुझे तो ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, मुझे तो सक्सेसफुल होना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, यार जाने दो, मरने दो साले। तो आपका एटीट्यूड जो है फॉरगिवनेस वाला हो जाए, माफ करने वाला हो जाए। अब जब आप रिलैक्स होते हो तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है ओपन हो जाता है। तो मैंने आपकी फ्रीक्वेंसी से आपको सिंपैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है, 99 काम कर रहा है। देखिए, आप सांस ले रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे, आपका हार्ट वर्क कर रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है, नहीं कर रहा, आपका यूरिन बन रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है, डाइजेशन हो रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। ये काम सारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कर रहा है। पर जब आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में चले जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जो आप सोचते हो वही दुनिया आपको नजर आने लग जाती है। तो अब हम अपने जो मेन वेबिनार पे आ रहे हैं, बीट स्ट्रेस बाय योरसेल्फ विदाउट एनी मेडिसिन। एक एक करके धीरे धीरे चलेंगे। जब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चैट बॉक्स में लिख दें, मैं लास्ट में सबकी प्रॉब्लम्स को डील करूंगा। बीच में टाइम मिलता जाएगा तो बीच में भी अपन बात करते जाएंगे। ये वेब आज के वेबिनार में जो सारा डिस्कशन रहेगा, यू कैन हील योर लाइफ बाय योरसेल्फ, इसमें बात करेंगे इंटेंशंस की, आपकी नीयत कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके बिहेवियर कैसा है और आपकी फीलिंग कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पे ही अपना सारा डिस्कशन बेस्ड है। और योरसेल्फ, आप अपने ऊपर, अपने साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो अपने आप को आप कितना जानते हैं।
आज का डिस्कशन इंटेंशंस, थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, फीलिंग्स और योर सेल्फ, आपके ऊपर ही सारी बातचीत होगी, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि वी आर रेडी टू बीट आवर स्ट्रेस बाय आवर सेल्फ, और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी इंटेंशंस, आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपकी फीलिंग्स, वो आपकी अपने आप की मदद ही आपको जो है इस दौर से निकाल सकती है। अब आप सोचें और मन में आंसर दें, क्रिटिसाइज योरसेल्फ एंडलेसली। क्या आप हर वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं? अरे यार, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं इंजीनियर होता, अगर मैं सीए होता, अगर मैं आईआईटी होता, तो भाई साहब मैं जलवा करके मरता। क्या अपने आप को कोसते रहते हैं? अगर है तो बोलिए यस, यस। अगर नो तो नो, मन में ही रखिए। एक्सेप्ट अनफुलिंग रिलेशनशिप एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, सेटिंग फॉर लेस इन पर्सनल। क्या आपको लगता है कि मेरे पास जो कुछ है उससे ज्यादा होना चाहिए था? अगर लगता है तो मन में बोलिए यस। अगर आपको लगता है कि फील गिल्टी व्हेन यू लिव फॉर योरसेल्फ, जब आप रिलैक्स होते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम देते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपको लगता है मेरा जो है काम सफर हो रहा है, आप गिल्टी फील करते हैं, तो लिखिए यस। अगर नहीं करते हैं तो लिखिए नो। बीइंग अफ्रेड ऑफ लिविंग योर कंफर्ट जोन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी कंफर्ट जोन जो है छोड़ते नहीं है। एक उनने अपना दायरा बना लिया होता है, उसमें नहीं निकलते। एक छोटी सी बात आपको याद रहेगी, एक बार क्या हुआ, एक राजा ने 2 तोते खरीदे और 2 तोतों को ट्रेन करने के लिए एक बड़े बड़े ट्रेनर्स को बुलाया। तो 15 दिन बाद जब देखा तो एक तोता तो बहुत बढ़िया उड़ने लगा और बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगा, पर एक तोता जो है अपनी डाली को छोड़ता ही नहीं था। बड़ी परेशानी थी। अच्छे अच्छे ट्रेनर्स बुलाए गए। राजा बहुत क्रोधित हुआ, उसने कहा कि इसको भी ट्रेन करिए, ऐसा क्या है? फिर एक किसान बाबू आए, उनने कहा हम इसको ट्रेन करेंगे। देखा क्या, 3 दिन में वो भी बढ़िया उड़ने लगा, बढ़िया बोलने लगा, बढ़िया परफॉर्म करने लगा। राजा ने पूछा कि भाई तूने क्या किया? उसने कहा महाराज, इसको अपनी जो डाली थी उससे बड़ा प्रेम हो गया था और वो इस प्रेम को तोड़ नहीं पा रहा था, अटैच हो गया था। हमने क्या किया कि इस डाली को ही काट दिया, तो जिससे कि क्या है ना, इसकी कंफर्ट जोन ही खत्म कर दी। नक्शल ये कि जब देखिए अपन जब घूमने जाते हैं, मैं भी जब घूमने जाता हूँ तो सामान भी खुद उठाना पड़ता है, लाइन में भी लगना पड़ता है, इमिग्रेशन में भी जाना पड़ता है और वो अपना सिक्योरिटी चेक भी कराना पड़ता है और लेआउट में बैठना भी पड़ता है। तो भी आप विश्वास करिए कि हम लोग बहुत कुछ सीख कर आते हैं, तो अपने को एक्सप्लोर करके आते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने में बहुत मजा आता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी है और आगे बढ़ना है। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप गिल्टी फील कर रहे हैं, वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो विश्वास करिए कि आज का वेबिनार आपके लिए संजीवनी है। अगर देयर आर टाइम्स व्हेन यू, कई बार ऐसा होता है कि आप जो है एक्सरसाइज नहीं करते, अलार्म लगाते हैं, फिर सो जाते हैं स्नूज करके। क्या आप किताब पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते? क्या आप रिलैक्स होना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं? तो वेबिनार भी आपके लिए संजीवनी है। आप कई बार अपनी बॉडी की केयर करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं, पर आप नहीं कर पाते क्योंकि जो हौच पौच और गॉसिप्स में लगे हुए हैं और जो है कोई ना कोई आपका ब्रेन बहाना बना के आपको परेशान करता है। तो ये वेबिनार आपके लिए है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसकी तनख्वाह मुझे कम मिल रही है और मैं जो काम ज्यादा कर रहा हूं पैसा कम मिल रहा है और मेरे को लोग बेवकूफ बना रहे हैं, मेरा ऑफिस बेकार है, मैं एक अच्छा राइटर नहीं हूं, मेरे वेबिनार्स खराब हैं? तो भी ये वेबिनार आपके लिए है। दोस्तों, प्ले स्मॉल बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग। आप डर के मारे, रिस्क के मारे, घबराहट के मारे बड़ा खेल नहीं खेलते, बड़ा नहीं सोचते। आपको लगता है कि इतना बड़ा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों ये वेबिनार आपके लिए संजीवनी है। ऑल्दो यू आर ए स्टार हु कैन शाइन ए लॉट। हर आदमी के अंदर एक फॉरेस्ट बनाने का बीज है, वो एक पूरा फॉरेस्ट बना सकता है। तो दोस्तों अपनी ताकत को समझें, इस वेबिनार के बाद अपनी ताकत को समझें और
दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें यस आर देयर। अगर आपके अंदर 4-5 यस आ रहे हैं तो आप एलोन नहीं है। कई लोग हैं ऐसे जो ऐसे 92% लोग ऐसे ही चल रहे हैं, करना चाहते हैं। देखिए एक लाइन में समझाऊंगा, सफल आदमी में और असफल आदमी में क्या फर्क है। सफल आदमी में और असफल आदमी में कितना क्या फर्क है। देखिए सफल आदमी भी असफल आलसी होता है, वो भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहता, वो भी आराम से सोना चाहता है, वो भी कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, पर वो हिम्मत करके एक्सरसाइज कर लेता है। तो कोई प्रॉब्लम है? वो एक्सरसाइज कर लेता है, उठ जाता है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ देता है, इसीलिए जो है वो सफल बन जाता है। मित्रों आज अपनी ताकत को समझें, आज ये इंटेंशन बनाएं, क्विक और इम्पोर्टेंट जर्नी। क्या आप ये सोच लें, ये अगर इतना समझ में आया हुआ हो कि अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप 92% से 8% में आना चाहते हैं, अगर आना चाहते हैं तो राइट यस इन द चैट बॉक्स, राइट वाई, यस, राइट वाई प्लीज, यस यस प्रियांशु पांडे जी, थैंक यू। ओवर इंटेंशन, आज की जो अपनी इंटेंशन है दोस्त, आज की जो अपनी इंटेंशन है, टेकिंग यू ए वेरी क्विक एंड इंपॉर्टेंट जर्नी। अब इस वेबिनार के थ्रू आप एक इंपॉर्टेंट जर्नी की तरफ जा रहे हैं। गेट एंड स्टक फ्रॉम द लिमिटिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस, गो बियॉन्ड व्हाट लिमिट्स अस। आपने देखा होगा ज्यादातर बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग लोग कई होते हैं जो उनके पास जाना भी लोग पसंद नहीं करते। कारण वो क्या करते हैं, अपनी पुरानी कहानियां सुनाते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था। लोग वो पास्ट में ही अटके रहते हैं। जो लोग पास्ट में अटके हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, तो समझ लो कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज मैं आपको इस वेबिनार में एक तो ये बताऊंगा कि आप लोग क्यों अनस्टक हैं, कैसे पास से अनस्टक होके आगे बढ़ना है, और आपको थॉट साइकिल के बारे में बताऊंगा। वो आपकी जो नेगेटिव बिलीव्स है, अनकवर द नेगेटिव बिलीव्स, कैसे नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उस पर बात करेंगे। तो आपकी फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा जहां समझ में नहीं आए उन्हें रोक सकते हो। रेडी कवर पावरफुल वेज ऑफ थिंकिंग, आज नई सोच बनाएंगे। लर्न वेज टू लव योर सेल्फ, मैं आप लोगों को इस वेबिनार में बताऊंगा कि अपने आप से कैसे प्रेम करना है। हाउ मेनी ऑफ यू से ऑथेंटिकली दैट यू आर लव योर सेल्फ इन स्पाइट ऑफ इवन व्हेन यू फेल। जब आप फेल हो जाते हैं, जब आप फेल हो जाते हैं और आप जो है अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होते। आपने कई बार देखा होगा, ये आपने अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। वो उन्होंने पहली मिसाइल बनाने की सोची, उसमें वो फेल हो गए। तो आपको मालूम होगा उनके हेड थे सुब्रमण्यम, इनको जो है प्रेस ने घेरा। प्रेस ने पूछा कि आपने करोड़ों अरबों रुपया सरकार का, देश का वेस्ट कर दिया। तो उनका ये बोलने ही वाले थे कुछ, तो इनके हेड ने जो है वो माइक ले लिया और बोला ये इसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। फिर उन्होंने उसके बाद फुल ऑल प्रयत्न किया और जो है 1 साल बाद 2 साल बाद फिर वही मिसाइल उन्होंने जो है वो पूरी की पूरी सक्सेसफुल हुई। आपको अगर ये पूरी स्टोरी आपको मालूम हो तो फिर जब उनकी हुई तो जब अब्दुल कलाम जी को उन्होंने कहा कि अब तुम बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि ये जो है मेरे को श्रेय नहीं जाता, ये श्रेय मेरी टीम को जाता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर फेल होने पे भी खुश होते हैं, आप लो नहीं होते हैं, इवन व्हेन योर रिलेशनशिप्स आर नॉट गेटिंग वेल। कई बार ऐसा होता है कि आपकी आपस में नहीं पट रही होती है। इवन स्पाइट ऑफ ऑल दिस यू लुक इनटू द मिरर एंड से आई रियली लव माई सेल्फ। उसके बावजूद भी जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि आई लव माई सेल्फ, तो आप समझ लीजिए कि आप जीत गए। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन बड़े वेबिनार के इंपॉर्टेंट पार्ट में एंटर कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि नो डिस्ट्रैक्शंस, नो मल्टीटास्किंग, एज दिस आई इज अ गिफ्ट फॉर एवरीवन हिम एंड हिमसेल्फ। आज जो वेबिनार है ये सबके लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है।
तो मैं चाहता हूं कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन से 1 घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए फ्री हो जाएं। हु एम आई? वी हैव एन आइडिया ऑफ अबाउट वर्क, रिलेशनशिप, विच केयर वी वुड लाइक टू ड्राइव, हेल्थ। हमको सब मालूम होता है कि रिलेशन सब जानते हैं, सबको मालूम है कि सुबह उठनी अच्छी बात है, अपन सबको मालूम है एक्सेप्टेंस अच्छी बात है, सबको मालूम है कि हेट्रेड बुरी चीज है, गुस्सा बुरी चीज है, फिर भी लोग करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि कैसे हेल्थ का ध्यान रखना है, कौन सी अच्छी डाइट है, कौन सी खराब डाइट है, सबको मालूम है, पर आप फिर भी नहीं कर पा रहे। सो वी हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट वी डिजायर इन लाइफ। हम चाहते हैं कि ऐसा करें, पर हम नहीं कर पाते। दोस्तों, क्यों नहीं कर पाते? रिसर्चेस ये कहती हैं कि दैट ओनली 8% ऑफ द पीपल एक्चुअली लिव द लाइफ दे रियली वांट टू फॉर देमसेल्फ। हर आदमी चाहता है बच्चों के साथ खेलो कूदूं, हर आदमी चाहता है मैं पैसे वाला बनूं, हर आदमी चाहता है मेरी कंफर्ट जोन बनो, तो उसके बावजूद भी वो जिंदगी चाहता है, वो वैसी क्यों नहीं बना पाता? कारण क्या है? उसी पे आज बात करेंगे। नाउ जस्ट मनी बट टेकिंग अबाउट रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, कैरियर, सक्सेस। एक जमाना था लोग जो है ये सोचते थे पैसा आ गया तो सब कुछ हो गया, कैरियर बन गया, खुशी आ गई, रिश्तेदार बन गए। अब ऐसा नहीं है। ये सोच, दिस मीन्स 92% पीपल आर सेटिंग फॉर मच लेस देन व्हाट दे रियली डिजायर टू क्रिएट देयर लाइफ। दोस्तों, 92% लोग जो है अपनी जिंदगी जैसी चाहते हैं वैसी नहीं जी पा रहे हैं। रिसर्चर्स कहती हैं कि 8% लोग ही जो हैं जो एक दिन में ही छुट्टी भी मनाते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, पूरा एक दिन ऐसा जीते हैं जैसे कि कल उठे कि नहीं उठे, जैसे जिंदगी जीनी है। तो मित्रों, आप इसके बाद डिसाइड करें कि आपको 92% की तरफ रहना है कि आपको 8% की तरफ रहना है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट होल्ड्स अस बैक। जब आपको मालूम है कि एक्सरसाइज अच्छी चीज है, डाइट कंट्रोल करना चाहिए, वेट नहीं बढ़ाना चाहिए, ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू खराब चीज है, तो भी आप लोग क्यों नहीं चेंज कर पा रहे? क्या बात है जो आपको होल्ड कर रही है? थिंक अबाउट योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ के बारे में, अपनी अंतरात्मा में झांक के आप खुद देखिए कि क्या चीज है जो आपको जो है बैक रोक रही है। क्या आपकी खुद की जिंदगी, यू नो व्हाट यू वांट, देन व्हाट होल्ड यू। आपको क्या चीजें रोक रही हैं? कुछ चीजें रोक रही हैं। कैसे? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कैसे? इकोनॉमी। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, आप लोगों को लगता है कि मैं गलत परिवार में पैदा हो गया, आप लोगों को लगता है कि मेरे पेरेंट ने मुझे कुछ नहीं दिया, आपको लगता है कि ये जो है कोरोना काल आ गया, पेंडेमिक आ गया, इसलिए परेशान हो गया। ये तो बाहर के फैक्टर्स हैं, आप लोग ऐसा सोचते हैं। और इंटरनल फैक्टर्स क्या है? आपको लगता है कि भैया मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, मेरे को डर लगता है, मेरे को डाउट्स हैं, भैया मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई भी काम करने के पहले आप पहले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये चीजें आपको होल्ड कर रही हैं। पीपल से आई डोंट हैव ए काइंड ऑफ सपोर्ट। लोग ज्यादातर यही बोलते हैं, भैया मुझे अगर सपोर्ट मिला होता तो मैं भी ऐसा कर जाता, मुझे अगर प्यार मिला होता तो मैं ऐसा कर जाता, मुझे टाइम अगर लोगों माँ बाप ने दिया होता तो मैं ऐसा मिल जाता, मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसा कर जाता, मेरे पास सिचुएशंस होती तो मैं ऐसा कर जाता। दोस्तों, ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो कई लोग क्या कहते हैं, these internal limitations actually create perception of external circumstances। दोस्तों, ये आपका क्या है, चाहे आपको होल्ड करती हैं, चाहे वो इंटरनल सर्कमस्टेंसेज हो, चाहे वो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज हो। आप जैसा परसेप्शन करते हैं वैसे ही आपको जो सक्सेस मिलती है। एक कहानी से अपनी बात समझाना चाहूंगा। एक परिवार में 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए। उनकी माँ का देहांत हो गया। बाप शराबी था। एक बच्चा जो है वो बाप दोनों बच्चों को जम के पीटता था शराब पीने के बाद। एक बच्चे ने सोचा कि मुझे इस माहौल में नहीं रहना, जैसे तैसे उसने स्कूलिंग की और बड़ा आदमी बन गया। सच्ची कहानी है बिल्कुल। और वो बड़ा होके बड़ा आदमी बना और जो है अमेरिका में उसने टेक्सास में वाइस चांसलर का रूप धारण किया, मतलब वाइस चांसलर बना। उसका जब इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया कि तुम जो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए तो तुम जो है इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? उसने कहा मैंने उसी टाइम सोच दिया था कि मुझे ऐसे माहौल में नहीं रहना, उसके लिए मैंने कोशिश की। और दूसरा बड़ा भाई गांव में ही था, बाप की तरह शराबी बन गया, बाप की तरह ही वैसा हो गया, वो भी अपने बच्चों को मार रहा था, उसकी भी बीवी मर गई, उसका भी इंटरव्यू लिया गया।
तो उसने कहा, अरे बेवकूफों, आप देखो जिसका बाप शराबी हो, माँ नहीं हो, बाप रोज पीटता हो, घर में पैसा ना हो, वो और क्या बन सकता है? शराबी नहीं बनेगा तो क्या होगा? मित्रों देखिए, दोनों के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल सर्कमस्टेंसेस एक से थे, पर दोनों ने उसको अलग अलग रूप से लिया, और एक कहाँ पहुंच गया और एक कहाँ का कहाँ रहा। ये आपके अंदर ही है, आपका थॉट प्रोसेस ही है कि आप उसको कैसे सोचते हैं और कैसे नजरिए से देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ज्ञान, ये नॉलेज इज गॉड। अगर ये नॉलेज ही आपका नजरिया बदलती है तो आप लोगों को जो है सोच बदलती है। जैसे ही आपकी सोच बदलती है तो आपके इमोशंस बदल जाते हैं, आपकी फीलिंग्स बदल जाती है, आपका बिहेवियर बदल जाता है, आपका उत्साह बदल जाता है। अब बात करते हैं कि गेम चेंजर क्या है, ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम ये जो अपना स्टकअप हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं एक्सटर्नल फैक्टर से, इंटरनल फैक्टर से, उसको चेंज करें। क्या करें? एक्सटर्नल कांट बी चेंज, बाहर की दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते, लोगों को हम नहीं बदल सकते। एक बार क्या हुआ, एक राजा के पैर में जो है कांटा लग गया। उसने जो है अपने मंत्रियों को बुलाया कि पूरे शहर में चमड़ा बिछवा दो। भैया चमड़ा बिछाने लगे। जब चमड़ा बिछाने लगे तो किसानों को लगा कि पूरी जमीन पे अगर चमड़ा बिछा देगा तो भाई मेरे अपन खेती कैसे करेंगे। सब लोग जो है भाई वो राजा के पास गए कि ये चमड़ा बिछवा रहे हैं, इससे तो खेती नहीं होगी। राजा का दिमाग चला गया, राजा थोड़े किसके तो होते ही हैं। तो उसने कहा ठीक है ऐसा करें, मिट्टी को छनवाएं, एक भी कंकड़ मेरे पैर में नहीं आना चाहिए। मिट्टी छनने लगी तो शहरवासी आ गए, पिसा हमको सर्दी जुकाम बुखार होने लगा, आप ये क्या खेल खेल रहे हैं। राजा ने तो क्या करूं मैं। फिर कुछ दिनों बाद एक लड़का बच्चा आया जिसकी उम्र 25 साल थी। उसने क्या किया, वो एक जो चमड़े की चप्पल बना के ले आया, उसने राजा के पैर में पहना दी। वो कहा कि राजा साहब जब भी आप बाहर निकलें इसको पहन के निकलें, आपके पैर में जो है कोई कंकड़ नहीं लगेगा। मित्रों बाहर की दुनिया नहीं सुधरेगी, सुधरना है आपको ही एक चमड़े की चप्पल बना के चलना है, आपको ही आंखों में पॉजिटिव चश्मा लगा के देखना है। दुनिया नहीं बदलेगी। कोशिश ये फार्मूला यही रखें, पहले रुक के काम चलता है, झुक के काम चलता है तो झुके, अगर झुक के काम नहीं चलता है तो रुकें। अगर आपको लगता है इसको नहीं झेल पाएंगे तो छोड़ें। तो बाहर का आदमी सुधर नहीं सकता, वो नहीं सुधरेगा। तो बिगिनिंग ऑफ एनी चेंज इज टू शो अप योर थॉट्स। जरूरत है आपको अपने आप को बदलने की, अपने विचारों को बदलने की। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक दिन में 80,000 थॉट अपने दिमाग में बनते हैं, और वो थॉट क्या करते हैं, रिंग नाउ। और आप देखिए अभी भी आपके अंदर थॉट चल रहा है कि बाहर की घंटी बज रही है, दाल का पानी बन रहा है, चाय पीनी है, बच्चा आवाज निकाल रहा है, ईमेल आ रहा होगा, ये सब आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये थॉट्स है। और आप देखिए 80,000 में से 99% थॉट आपके नेगेटिव होते हैं और रिपीटेड होते हैं। वही बातें आप रोज करते हैं, उसी कप में चाय पीते हैं, उसी टूथब्रश से ब्रश करते हैं, उसी प्लेट में खाना खाते हैं, उसी करवट आप सोते हैं। तो अगर भाई आपका पैटर्न यूर ओल्ड कैंस यूर चैटर, यही दिमाग में आपकी बातें चलती रहती हैं। और आप अगर आपके अंदर यही पुरानी बातें 80,000 थॉट आप अगर रोज नेगेटिव बनाएंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसी बनेगी। तो क्या होगा, आपके अंदर ऐसे लोग क्या करते हैं, कंप्लेनिंग करते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, वो अपने आप को विक्टिम मान लेते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। और वो जो क्या करते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हम ग्रेट हैं, हम गिल्टी हैं, यही सोचते रहते हैं। दोस्तों अगर 80,000 थॉट आपके ऐसे नेगेटिव बनते रहे, ऐसे रिपीटेड बनते रहे, तो सेम ओल्ड थिंकिंग सेम ओल्ड रिजल्ट। अगर आपको जिंदगी बदलनी है, 92 से 8% में आना है, तो अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, अब मैं बताता हूं। व्हेन इनपुट आई गिव यू, जब जो इनपुट आप दोगे वही अपना आप चेंज हो जाएगा। तो आज जो बात करेंगे कैसे अपने जो है थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तो क्वेश्चन अराइजेस हाउ दिस चेंज विल हैपन मैजिकली। क्या जादुई शक्ति है जिससे कि हम ये थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल सकते हैं। और ये थिंकिंग किसके कंट्रोल में है, और राइट थिंकिंग क्या होती है और गलत थिंकिंग क्या होती है। थॉट्स आर नथिंग बट ए स्ट्रीम ऑफ इनर डायलॉग। जो बातें आप अपने आप से करते हैं उन्हीं को जो है थॉट्स बोलते हैं।
सबसे ज्यादा बातें आप अपने आप से ही करते हैं, यार ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। इमेजिनली ईच थॉट मैटर। इनिशियली क्या होता है, देखिए जरा सी बात किसी ने कह दी, मैं आपको बताता हूँ, मैं फ्रीक्वेंटली जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ट्रेवल करता हूँ, मेरे को कभी डर नहीं लगा। एक बार मेरा दोस्त था, मेरे दोस्त था नहीं, अभी भी है, वो आया जब मैं जा रहा था, उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब राजीव गांधी का, नहीं राजीव गांधी नहीं, ये राहुल गांधी का प्लेन जो है 10,000 फुट नीचे गिरा पर बचा लिया गया। तो आप विश्वास करिए, मेरे को 2 दिन बाद फ्लाइट में जाना था, मैं फ्लाइट में बैठा, तो आप विश्वास करिए जब भी टर्बुलेंस से निकल रहा था, मेरे को उसकी बात ही याद आ रही थी और मैं डर रहा था। तो मित्रों, एक गलत बीज से आप विश्वास करिए कि मेरी जो पूरी यात्रा जो है बड़ी गंदी सी बन गई। ना खाने का मजा, ना पीने का मजा, ना वो एयर होस्टेस देखने का मजा, कुछ मजा नहीं आया, और टेंशन बनी रही और परेशान रहा। इसलिए क्या है कि एक थॉट, एक गंदी विचारधारा आपके दिमाग में डाल दोगे, बीज डाल दोगे, तो वो क्या करता है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर जैसे धीरे 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 जो है एक पानी का बूंद बन जाती है, और धीरे धीरे वो एक तालाब बन जाता है। और ऐसे ही क्या है कि एक नेगेटिव थॉट किसी ने भी आपको भेज दिया, बार बार अगर उसका आप रिपीटिशन करते हैं तो वो एक वरीज, चिंता बन जाती है। इसे थॉट साइकिल बोलते हैं। क्या थॉट साइकिल क्या है? अगर आपने लिखा कि लाइफ इज एक स्ट्रगल, आप बचपन से सुनते आते, भैया जिंदगी आसान नहीं है, पैसा पैसा पेड़ पे नहीं उगता, भैया मेहनत करो। दोस्तों, पर जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अभ्यास है, जो शास्त्र है, वो ये कहते हैं कि कभी भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत तो भैया मजदूर जो है सुबह शाम तक करता है। अब मजदूर जो है 100 ईंटें उठाकर 6ठी मंजिल पे चलता है, पर शाम को उसको 1000 रुपए मिलते हैं। हम लोग एसी में बैठे एक एक दिन में कितने लाखों कमाते हैं। तो ऐसा मेहनत वो ज्यादा कर रहे हैं। मेहनत से कुछ नहीं होता, एफर्टलेस वर्किंग से ही आदमी को सक्सेस मिलती है। अगर आप ये थॉट पे, पुराना थॉट है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, पेड़ पैसा, ये पैसा जो है पेड़ पे नहीं उगता, पेड़ पे नहीं उगता पर आसानी से कमाया जा सकता है एफर्टलेसली। पर जरूरत क्या है, आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपनी ट्रेनिंग बढ़ाएं। जैसे आप बढ़ाओगे पैसा आपके पीछे आएगा। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, लक्ष्मी के पीछे भागते हो, सरस्वती को भूल जाते हो। दिस इज गलत। ये अगर ऐसे थॉट रहेंगे तो आपकी फीलिंग कैसी रहेगी, एंग्री, लड़ते रहोगे, इरिटेट रहोगे, हेल्पलेस रहोगे, मिजरेबल रहोगे और एम्बिशियस रहोगे। हर वक्त आप जब परेशान ही रहोगे। ऐसे में क्या करोगे, आप एक दूसरे की कंप्लेंट करते रहोगे, अपने आप को विड्रॉ करोगे, गेट इरिटेटेड एवरीबडी पर्सनली। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि ये थॉट को आप हटाएं। ये बोले लाइफ इज ए एंजॉयमेंट, लाइफ इज वेरी प्लेजेंट, money can be easily gained. Every single thought creates a feeling. If I am not feeling angry, irritable, helpless, loved, it is expressed of the body. अगर आप जो है हेल्पलेस नहीं फील करेंगे, आपका जो इमोशन जो है, इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। व्हेन यू आर एंग्री इट शोज अप योर बिहेवियर। आप गुस्से में जब होंगे तो आपकी टोन से मालूम पड़ जाएगा, आपके हाथ पैर चलने से मालूम पड़ जाएगा, आपके अंदाज से मालूम पड़ जाएगा। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि लाइफ इज ए कांस्टेंट स्ट्रगल, नोबडी अंडरस्टैंड मी, दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे कोई समझता नहीं है, लाइफ एक स्ट्रगल है, तो टेल मी आपका इमोशन क्या होगा? आपका इमोशन यही फ्रस्ट्रेशन का होगा, ब्लेमिंग का होगा, एंगर का होगा, वो पावरलेस होगा। और आपका बिहेवियर कैसा होगा? आप एक दूसरे को दोष देते रहेंगे और एक दूसरे से रिएक्ट करते रहेंगे। तो अगर आपने ये बोल दिया कि लाइफ इज ए सीरीज और लर्निंग एक्सपीरियंस, आई एम डिस्कवरिंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम लर्निंग टू द सेल्फ सफिशिएंट, तो आपका फीलिंग क्या होगा? एम्पावरमेंट का होगा, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आप सेटिस्फाइंग होंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, अवेयर रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, और होपफुल रहेंगे। तो बिहेवियर आपका कैसा होगा? आपको अपने काम पे फोकस रहेगा, आपको हर काम के लिए क्यूरियोसिटी रहेगी, आपको पढ़ने की इच्छा होगी, आपका फोकस जो है अपने काम पे ही रहेगा, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। इट इज ए विशियस साइकिल। ये एक साइकिल है। अगर आप जो है नेगेटिव थॉट को चलाएंगे, ये साइंस है कि अगर आप जो है बिहेवियर इफेक्ट्स जो है, आपके जो थॉट है उससे इमोशन बनता है, इमोशन से फीलिंग, और फीलिंग से जो है आपकी बॉडी में उत्साह आता है। हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को अगर आपको जो है मेंटेन करना है, इफ वी वेक अप विद रॉन्ग थॉट्स, आई डोंट वांट टू वेक अप,
अगर आप यही सोचते हैं कि आज मैं उठना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं था, आज मेरे को जो है छुट्टी मिल जाती तो अच्छी थी, पर आज जो है मेरे जो है साहब ने बुलाया है, मजबूरी है, क्या करूं, तो आप देखना कि जब आप पेस्ट करने जाओगे पेस्ट खत्म हो गई होगी, आप रास्ते में जाओगे तो रेड लाइट मिलेगी, ऑफिस में जाओगे तो देर हो जाएगी, काम आपका नहीं होगा। तो अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ उठोगे तो दिन भर आपकी नेगेटिव थॉट्स ही बनी रहेंगी। जैसे अपन टमाटर का बीज डालेंगे तो एप्पल नहीं उगते, ऐसे नेगेटिव अगर सोच डालोगे तो कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। इनर थॉट्स इज इक्वल टू आउटर रियलिटी। आपको यही सोचना चाहिए कि आई एम गुड इनफ, आई एम सेफ, आई लव, एवरीबडी लव्स मी and I am sending loving vibrations to all over the persons that coming in contact with me, and money is coming to me through all the ways and I am accepting it। इस टाइप की सोच के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आपको ऐसे, क्योंकि क्या है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एफर्मेशंस को सुनता है, आपके इमेजेस को सुनता है, पॉजिटिविटी को सुनता है, वो जिन है। अगर आप बार बार चीज को रिपीट करेंगे, दिए को घिसेंगे तो ऑटोमेटिकली जिन निकल आएगा, तो आपकी बातों को पूरा कर देगा। तो कैन थॉट्स बी चेंज, क्वेश्चन अराइजेस, यस, बाय कॉशियसली चूजिंग एफर्मेशन। देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मोबाइल में एक डिफॉल्ट टोन आती है, ऐसे जब आदमी पैदा होता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डिफॉल्ट टोन आती है, जैसे हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, गुस्सा। आप देखिए कि अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है, दो तो स्कूल भेजना पड़ेगा, जब भी वो गिनती सीख पाएगा, नहीं तो अनपढ़ बन जाएगा। अगर बच्चे को वो आप जो है जंगल में भेज दें तो प्यार करना, इश्क करना, सेक्स करना, गुस्सा करना वो तुरंत सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी डिफॉल्ट टोन है। आपने गाना भी सुना होगा, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, इश्क सिखाया नहीं जाता। तो ये बेसिकली डिफॉल्ट टोन्स हैं। अपने पुराने गाने भी जो है कुछ स्पिरिचुअल बने हुए हैं। तो मित्रों ये डिफॉल्ट टोन है। अगर आपको अच्छी टोन लगानी होती है तो पहले आपको जो मोबाइल में वो गाना डाउनलोड करना पड़ता है और फिर उसको जो है लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर आपको अपनी एंग्री से आपको शांति प्रिय बनना है तो आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी आपका जो है 8,000 थॉट्स का जो 80,000 थॉट्स पर डे जो बन रही हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो आपकी जो है लाइफ भी वैसे ही इंप्रूव होगी। तो अगर आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए हो, यू कैन काउंसिल विद मी एट एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग। आई विल गिव यू द फोन नंबर and my team phone number in the last, so that you can counsel with me। जजमेंट, ऐसे लोग क्या होते हैं जब नेगेटिव थॉट्स से अपन लोग भरे हुए होते हैं तो अपन क्या लोगों को जज करते रहते हैं। बेसिकली जजमेंट के ऊपर में जजमेंट अबाउट द पीपल करते रहते हैं। जजमेंट पे आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी बात जिससे आपको याद रहे। एक बार टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, बोर्ड पे लिखती है कि डियर फ्रेंड, डियर चिल्ड्रन, 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज इज इक्वल टू, सब बच्चे बोले 4 मैंगोज और एक बच्चा बोले 5 मैंगोज। तो टीचर को लगा कि हो सकता है कि इसको मैंगो समझ में नहीं आ रही है, तो उसने फिर लिखा 2 चेरीज प्लस 2 चेरीज, तो बोला 4। तो उसको बड़ा इरिटेशन हुआ कि सारा समझता तो है ये, फिर ऐसी गड़बड़ क्यों कर रहा है। फिर उसने पूछा कि 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज। वो लड़का बोला कि मैडम 5, अगर मैं आपको 4 मैंगो दूं तो आपके पास कितने हो जाएंगे। वो बोला 5। मैडम को गुस्सा आया, मैडम ने एक छांटा लगा दिया। मैडम ने कहा भाई तू जो चेरी तो बोलता है 4 हो जाएंगी और मैंगो बोलता है 5 हो जाएंगे, ऐसा क्यों। तो बोला मैडम मेरी मम्मी ने जो है एक मैंगो मेरे टिफिन में दिया है, तो आप मुझे 4 दोगे तो मेरे पास कितने हो गए, 5 हो गए। दोस्तों इसमें गलती किसकी है, मैडम ने उसको जज किया। हर आदमी अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने एनवायरमेंट, अपने बिहेवियर, अपने IQ, अपने इमोशनल क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट के हिसाब से ठीक है। आपको उनको जज नहीं करना, ना अपने बॉस को, ना अपने बच्चों को, ना अपनी सोसाइटी को, ना अपनी गवर्नमेंट को। अभी आप ट्रैवल करिए, अभी आप अब AC में भी ट्रैवल करिए, तो आपको जो मोदी जी को शिक्षा दे देते हैं लोग, सचिन तेंदुलकर को खेलना सिखा देते हैं, विराट कोहली को सिखा देते हैं कि वो नहीं करेगा, उसने अगर ये आउट वाली बॉल नहीं की होती तो आउट नहीं होता। तो दुनिया भर की राजनीति आप देखिए सिखा देते हैं वो लोग सब। तो ये सब गलत है। दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। Lewis says we all have a feeling that people should in a particular way, people should be sensitive। अगर आपके पॉजिटिव से हैं तो आप सेंसिटिव होंगे,
ऑन द टाइम होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, डिसिप्लिन होंगे, कमेंटेड होंगे. बट टुडे आई वांट टू रिमाइंड यू दैट these people get converted into rigid, get accept expectations. जो लोग नेगेटिव रहते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, अपनी चीजों को बदलते नहीं है, अपने माइंड और फ्लेक्सिबल माइंड्स आर ओनली इंटेलिजेंट माइंड. तो मित्रों, तो मैं हेल्पलेस हो जाते हैं. दीज आर डिसेबलिंग इमोशंस वी रेयरली लीड टू पॉजिटिव रिएक्शन. जो लोग रिजिड हो जाते हैं, अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, वो हेल्पलेस रहते हैं, अकेले हो जाते हैं. वो एंड में ओन मोन और कौन, मतलब कहने का तात्पर्य कि पुण्य में बैठे रहते हैं, लोग उनके पास आना पसंद नहीं करते. तो आप देखिए कि 70, 50, 80% थॉट जो है आदमी की नेगेटिव है. अगर उनको आपको पॉजिटिव करना है तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा. हम लोगों को सुधार नहीं सकते, हमको अपने आप को ही सुधारना है. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? अवर थॉट्स क्रिएट अवर रियलिटी. इसलिए उन पे वर्क करना है, जज नहीं करना है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, गॉसिप्स नहीं करना है. दोस्तों, इफ यू लैक लव एंड केयर इनसाइड, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, दिए में खुद तेल नहीं है, तो आप मान के चलिए वो दूसरे को कैसे जलाएगा, इसलिए कैसे ही उस दिए को जोत जी सकता है. इसलिए पहले आप वो देखिए, हवाई जहाज में जाते हैं तो कहते हैं कि अगर प्रेशर कम हो जाए तो पहले ऑक्सीजन का खुद लें और फिर अपने बच्चे को लगाएं. तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो है हर वक्त यही बोले कि आई एम ए पावरफुल मैन, आई एम ए ग्रेट मैन, आई एम ए सक्सेसफुल मैन, आई एम लविंग योर सेल्फ. ये इंपॉर्टेंट चीज है. फोकस वेज टू लव योर सेल्फ. फिर आप जो है अपने ऊपर फोकस करें और जो है इसका गाइडेंस के लिए आप मुझसे जो है क्या क्या करना है आप मैं बताता हूँ. कुछ मेडिटेशंस हैं, कुछ फियर दूर करने के तरीके हैं. हाउ मैनी ऑफ यू टेंड टू क्रिटिसाइज? आर यू रेडी? ज्यादातर लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने स्टैंडर्ड बना लेते हैं, रिजिड हो जाते हैं. अगर आपको इनसे बचना है तो ये स्ट्रेटेजीज मैं आपको दे रहा हूं, उनको ध्यान से देखें. स्टॉप ऑल क्रिटिज्म. आप जो है क्रिटिज्म्स को बंद कर दीजिए, एक दूसरे की बुराई बंद कर दीजिए. ओवर थिंकिंग, एक चीज को बार बार रिपीट मत करिए. आप जो है कंप्लेनिंग बंद कर दीजिए, ये चीजें बंद कर दीजिए. ओबेसिटी है तो कोई बात नहीं, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें, मिरर के आगे बोलें कि आई एम ओके. जब जाके आपका जो है फोर्थ क्या, स्टॉप कंपेयरिंग. एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे से इंस्पायर होना है. एवरी मॉर्निंग यू वेक अप, आस्क योरसेल्फ, क्या आपको यही सोचना है कि कल से मैं बेटर हूं कि नहीं हूं, मैंने कल से ज्यादा ग्रो किया है कि नहीं किया हुआ है, कल से मैं बेटर पोजीशन में हूं, तो देन इट इज ओके. You only compare yourself, not compare yourself from the other. Tell in one word, how are you feeling? Keep in touch. मेरे दोस्तों, मैं कुछ चीजें पूरे वेबिनार को आपको एक बार रिपीट करूंगा, just in short few words, and I will give you a prescription for that. इतनी चीजें अगर समझ में आई हो तो मैं आपको जो है चैट बॉक्स में लिखें कि क्लियर, तो फिर आपको इसको एक समराइज कर देता हूं. Chat box. Write C in the chat box. Write C. If the every sir, how can we say those things which are not क्या? C, clear. Pianshu Pandey ji, basically this is a long process. We will discuss in every session all the things. Just see the physical changes. अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या क्या फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाते हैं, उसको एक शॉट में देखिए. एक कल ही जो है WHO की तरफ से जारी हुआ है कि अगर स्ट्रेस रहेगी तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे. सी द डायग्राम. आपको भूख नहीं, सी द डायग्राम डियर फ्रेंड्स, सी द डायग्राम. देखिए, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके गले में कुछ अड़ रहा है. क्या होगा? Wait for 2 minutes, 2 seconds, dear. Just I am giving to the diagram. क्या होगा? Yes, not feeling hungry, lump in the throat. आपको ऐसा लगेगा गले में कुछ अड़ रहा है, आपकी छाती में आपको ऐसा लगेगा कि हार्ट अटैक हो रहा है, आपकी मसल्स टाइट हो जाएंगी, पेट खराब हो जाएगा, पीठ में दर्द होगा, हेडेक होगा. ये सब चीजें आपकी स्ट्रेस में से वजह से होती हैं. ये कोई बीमारी नहीं है,
इसको आप खुद ही दूर कर सकते हैं अपनी विचारधारा को बदल के। विचारधारा बदलने के लिए भी एक प्रिस्क्रिप्शन है, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, आपको प्रिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुने। प्रिस्क्रिप्शन को एक आगे मत चल रहा, मैं एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। प्रिस्क्रिप्शन में एक प्रिस्क्रिप्शन, पहला प्रिस्क्रिप्शन ये है कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, एक राजा के राजा, ये अशोक सम्राट अशोक का नाम सुना होगा आपने। सम्राट अशोक जो है एक दिन अपने शहर पे निकल रहे थे, तो वहां पर एक फकीर बुद्ध भगवान के रूप में बैठे थे, तो अशोक ने उनके नीचे अपना सिर झुका दिया। सिर झुका दिया तो मंत्री और पूरी जो है प्रजा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। जिस महाराज अशोक के वो लोग के सिर पे तिलक लगाने के लिए दुनिया आती है, उसने अपना सिर जो है झुका दिया। लोगों ने आपत्ति जगाई कि एक इस फकीर के आगे आपने अपना सिर क्यों झुका दिया। उनने अपने मंत्री को कहा कि ये थैला ले जाओ, इसमें कुछ चीजें हैं, उनको बेच के आओ और पर बाजार में ही इसको खोलना। थैला ले गए वो। जब थैला गए बाजार में खोला तो आश्चर्यचकित रह गए। एक में बकरे का सिर था, एक में भैंस का सिर था, और एक में जो है शेर का चित्र था, जब एक में आदमी का सिर था। 3 सिर तो बिच गए, पर आदमी का सिर कोई नहीं खरीद रहा था। पर वो लौट के आया, उनने कहा साहब आपका काम पूरा नहीं हुआ, ये आदमी का सिर नहीं बिच पाया। राजा ने कहा दोबारा जाओ। वो कसाई के पास गया, कसाई ने कहा मरवाओगे क्या, राजा के सैनिक मुझे पकड़ लेंगे और ये आदमी का सिर कौन खाएगा। आप समझ में नहीं आई। तो आज तो महाराज सम्राट बोले देखो भाई, ये मैंने आपको समझाया था कि ये जो अपना सिर है, ये जो किसी काम का नहीं है, अगर ईगो से भरा हुआ है। अगर आप ईगोलेस हो जाते हैं जब ही इसकी वैल्यू है। तो मैंने सिर झुका के उनकी खिदमत में अपना आदर सत्कार किया, तो अपनी ईगो को हटाया। तो आपको अगर मान लो पॉजिटिव बनना है तो आपको ईगोलेस बनना पड़ेगा। अगर ईगोलेस लोगे तो आपका भी सिर कोई नहीं खरीदेगा, आपकी बुद्धि का कोई उपयोग नहीं करेगा, आपकी काम की कहीं भी शोहरत नहीं होगी। दूसरा क्या है, दिस शैल पास। दोस्तों दिस शैल पास, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है कि क्या होता है कि अपन कई बार क्या होता है कि कुछ समस्या सामने आ जाती है। कुछ समस्याएं क्या है कि धीरे धीरे जो अपन बड़ी समझते हैं वो छोटे रूप में ही जो है खत्म हो जाती हैं, पर अपन उसको बहुत बड़ी बना लेते हैं, पर कई बार वो इतनी बड़ी नहीं होती है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक समस्या को मैं समझाता हूं कि क्या हुआ कि एक राजा बूढ़ा हो गया, उसको अपने जो है एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी, उसका बच्चा नहीं था। उसने राज में खबर करवा दी कि कोई भी होनहार व्यक्ति आएगा। उसके लिए उसने एक महल बनवाया जिसका दरवाजा था उस पे जो है ताला लगा था और 2 इक्वेशंस लगी हुई थी मैथमेटिक्स की। उनको गणित लगाने पर ही वो ताला खुलता था। तो मित्रों, पूरे राज के लोग आए, अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन आए और जो है उन इक्वेशंस को लगाते रहे, पर वो ताला नहीं खुल पाया। राजा निराश हो गया। फिर लोगों ने कहा कि बगल में 2 मैथमेटिशियन और हैं बगल के गांव में, उनको बुलवाते हैं और उनसे ये इक्वेशन सॉल्व करवाते हैं जिससे कि ये ताला खुल जाए और वो राजा बन जाए। दोस्तों 2 मैथमेटिशियन आए, पर साथ में एक 25 साल का बच्चा भी आ गया। उन मैथमेटिशियन ने बच्चे को बोला तू खोल के देख ले। उन्होंने कहा नहीं, आप बड़े हैं, आप करिए। वो 2-3 दिन तक जो है उसकी कैलकुलेशंस करते रहे, पर वो भी जो है आखिरी में निरुत्साहित हो गए, वो ताला नहीं खुला। फिर बच्चे का नंबर आया, बच्चे ने आंखें बंद करी, कुछ सोचा और दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया, जय जयकार हो गई और वो राजा बन गया। दोस्तों हुआ क्या, राजा ने उलझाने के लिए वो 2 इक्वेशंस लगाई थी। लोग उसको बड़ी समस्या समझकर लगे रहे। वो बच्चा था, उसने सोचा कि ऐसे ही धक्का लगा के देख लेते हैं, तो दरवाजा खुल गया। दरवाजे का ताला वैसे ही खुला हुआ था। कई बार समस्याएं आती हैं, वो 99% अपने आप चली जाती हैं, पर हम फजूल में जो है इधर उधर लोगों से अप्रोच करते रहते हैं, वो परेशान होते रहते हैं 99%। इसलिए आप ये विचार रखें कि ये समय आया है, धीरे से हट जाएगा। डोंट बिलीव इन फॉल्स सपोर्ट। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक राजा
एक राजा जो है अपने विश्राम में जा रहा था, तो उस दिन कई सालों बाद उसका जो दरबान था, जो जवानी से दरबानी कर रहा था, वो बुढ़ापे में आ गया। तो बुढ़ापे में जो उसको राजा की निगाह कभी नहीं पड़ी, पर जब वो 80 साल का बूढ़ा हो गया तो राजा की निगाह पड़ी, तो वो देखा कि बहुत ठंड से थरथरा रहा है और पतले कपड़े उसने पहन रखे। तो राजा ने कहा कि अरे भाई, तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही होगी, मैं अंदर जाता हूं और कंबल आपके लिए भिजवा। राजा अंदर गया, खाने का टाइम था, खाना खाया, फिर जो है सोने का टाइम हो गया, भूख गुलास में लग गया, कंबल भेजना भूल गया। सुबह उठा तो एकदम जो है हड़बड़ मच गई कि महाराज जो दरबान था वो मर गया। राजा भागता हुआ गया, जब देखा तो वो मरा पड़ा था और नीचे बगल में उसके मिट्टी का ढेर था। उस मिट्टी के ढेर पे उसने लिखा था कि राजा, मैं 40 साल से दरबानी कर रहा हूं, मुझे कभी ठंड नहीं लगी, तो कल रात को जब आपने कहा कि मैं कंबल भेज रहा हूं, तो मेरे को आश्वासन मिल गया कि राजा कंबल भेजेगा। मैं आपके कंबल की इंतजार करता रहा और मुझे बहुत ठंड लगने लगी और मैं मर गया। दोस्तों, लोगों पे विश्वास करना बंद करो, लोगों के सहारे बंद करो, डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करो। आप जब झूठे सहारे आप पकड़ते हैं, तो जो उस दरबान का हाल हुआ वही आप लोगों का हाल होगा। इसलिए डोंट बिलीव इन फॉल्स सपोर्ट। और आप लोगों का जो सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, इसको भी दिमाग से हटा दो। दोस्तों, इसी के साथ एक सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो दोस्तों, पहले जो मेरा वेबिनार का सेशन था स्ट्रेस नो मोर, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस अच्छा भी है और बुरा भी है, स्टेजेस बताई थी। आज मैंने बताया कि किस तरह से यू कैन बीट योर स्ट्रेस, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, तो अगर आपको बेस्ट लगा है तो गिव योर कमेंट्स। एक्सीलेंट लगा है तो एक्सीलेंट बोलें, बी लगा है तो बी बेस्ट बोलें, अगर बैड लगा है तो बैड लिख दें, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद का जो वेबिनार है, इसको भी कैसे थॉट प्रोसेस को भी डेवलप करने के लिए कई स्टेजेस रहती हैं, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वेबिनार 9 तारीख को लेने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेंटल टफनेस रेजिलेंस। वो भी बहुत बड़ा शो होने वाला है, वो भी आपको भी स्कैन कर दिया जाएगा। उसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर कराएं और पूरी सीरीज को ज्वाइन करने की कोशिश करें। गिव योर कमेंट्स प्लीज, एंड after give your comments and ask your questions. We have a 5 or 10 minutes more. We can take 2 or more for 4 questions. You can ask frankly. Mic खोल दो, तुम बोलो। अपने माइक आप खोल सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। प्रवीण जी। हाँ जी सर जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर। गिव योर कमेंट्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट। थैंक यू डियर, थैंक यू। आप सब लोगों को एक ई बुक दी जाएगी जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, और जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को भेजी जाएगी। और नेक्स्ट वेबिनार का ये स्कैनर है, ये भी भेजा जाएगा ग्रुप के अंदर। अगर आपको तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कविता दत्ता जी कहाँ से हैं आप? अपना माइक खोल सकते हैं। You can hear me? Thank you. विमल जी, thank you. Next. Okay, किसी के कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर अपन एंड करते हैं। सर दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं, ओके। So nice of you. कोई क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। सर मेरे एक्चुअली बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आजकल हुई पड़ी है, और जो डेली कोर्स के जो काम है वो भी मेरे को करने मुश्किल लग रहे हैं। मतलब मेरे को लगता है आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, और डिस्पाइट आई एम अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू मी, लेकिन मैं अब निकल नहीं पा रही हूँ उस सिचुएशन से। तो बेसिकली आप थोड़े देर के लिए अपनी छुट्टी लें और थोड़ा सा जो है अपनी कंफर्ट जोन छोड़कर थोड़ा सा घूम के आए मस्ती के साथ, अच्छा लगेगा आपको। क्या कि थोड़ा स्विच ऑफ भी करना पड़ता है कई बार, जैसे अपने मोबाइल कई बार हैंग हो जाता है। ऑफिस से तो छुट्टी लेके घर बैठी थी मैं, लेकिन उससे घर बैठने से काम नहीं चलेगा ना। एक ऑफिस छोड़ के दूसरे ऑफिस में बैठ गई हो, कैसे काम चलेगा? वो भी घर भी तो एक ऑफिस है। अपना मस्ती से जाओ, अच्छे से घूम के आओ, एक्सप्लोर करके आओ, बढ़िया रिलैक्स करो, 2-4 दिन की अपना एक अच्छा सा स्नैप लो, आपको अच्छा लगेगा। लौट के जब आओगे तो सब चीज अच्छी लगेगी।
क्या इन चीजों का फर्क पड़ता है, करके देखो। Okay. आदमी को लगता है कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो आप ये कहना बंद कर दो कि मैं नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग में आती है, नहीं। जो हो रहा है, सिचुएशंस तो देखो आती हैं, आपको डेस्टिनी आपको बनानी है। तो अगर आप उसको सिचुएशंस कुछ नेगेटिव आती हैं, देखिए सिचुएशंस तो लिखी हुई होती हैं, तो उसकी डेस्टिनी बनाना आपके हाथ में है। तो उसको अब ये मत सोचिए नेगेटिव, तो ये तो बड़ा मिस नॉर्मल सा वर्ड है, इसको मत यूज करिए। कहना कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप मेंटली थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन चाहती हूँ, तो गेट योरसेल्फ रिलैक्स। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया है। नहीं, ये मत बोलिए। देखिए कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, तो कॉन्फिडेंस पैदाइशी चीज नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। उसी पे मेरा नेक्स्ट वर्कशॉप है, मेंटल टफनेस, हाउ टू डेवलप रेजिलेंस। जिस आदमी ने रेजिलेंस डेवलप कर ली, मेंटल टफनेस डेवलप कर ली, वही जग जीत लेता है। तो अभी तो हाल फिलहाल आपके लिए यही राय है कि आप थोड़ा सा स्विच ऑफ करें, और नेक्स्ट लेक्चर में 9 तारीख को फिर मिलते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो कभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, और वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चंस? ओके, बाय बाय।